Well, we are going to start this session with patterns. Yes, there are certain patterns which can help you memorize the formulas to fit them, how to use the formulas in a particular question. We'll be getting the idea how the questions are framed. If you come to know how the questions are framed, what is the demand of the question, then you will be able to do the questions easily. So here we will be taking some questions for simplification of inverse trigonometric functions. Before that, we must try to know what are the certain patterns which can help us to crack the questions. Well, let's talk about some trigonometric formulas which we have studied in class 11th. Look at them. See. First thing, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. This is Pythagoras theorem which you have studied in class 9. This helps you giving this sine square theta plus cos square theta is equal to 1. What you need to do? Hypotenuse square से divide करो, p upon h whole square plus b upon h whole square. You are dividing by h square both the sides. So this is p upon h square, b upon. This is nothing. Pandit Badri Prasad Har Bole. So perpendicular upon hypotenuse is sine theta and base upon hypotenuse is cos theta. So sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Mind it. This can be used as sine square theta is equal to 1 minus cos square theta, or simply cos square theta is equal to 1 minus sine square theta. This we must know. Okay. If I try to divide this by p square, both the sides, if I divide it by p square, what it gives? 1. P square by p square is 1 plus b upon p whole square is equal to h upon p whole square. So simply it gives 1 plus base upon perpendicular. So base upon perpendicular is the reciprocal of 10, that is cot. 1 plus cot square theta is equal to hypotenuse upon perpendicular is cosec square theta. Right? In the same way, if I divide the Pythagoras theorem both the sides by b square, what I get is p by b whole square plus 1 is equal to h by b whole square, and that is nothing. Tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Or you can do another method. If you take this in this square identity, it is true for all the values of theta. If you divide both the sides by cos square theta, what you get? Sin square theta upon cos square theta plus 1 is equal to 1 upon cos square theta, and that is nothing, the same identity. Tan square theta plus 1 is equal to 1 upon cos square, that is sec square theta. If you divide both the sides by sin square, then you get, so if you divide by sin square, 1 plus cos square upon sin square, that is 1 plus cot square is equal to cosec square. This is how it works. Now let's tabulate them. In the trigonometry T ratio table, we write sin theta first, then we go for cos, then tan, then sec, then cosec. Let's make a hexagon. A hexagon can help us. See, sin theta, cos theta, sin cos tan cot, tan theta, cot theta. Now the last two are here. Sin cos tan cot, sec theta, cosec theta. Say here, the first trigonometric identity was here, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, that is 1 minus sin square is equal to cos square, and 1 minus cos square is equal to sin square. Let's talk about the second one. It is between these two. What ये ऊपर है, अगर just for reference ये कम है ये ज्यादा, तो आप सोचेंगे 1 plus tan square, it is square identity. 1 plus tan theta is not equal to sec theta. These are square identities. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So whenever you see 1 plus x square, it must come to 1 plus tan square sec square. In the same way, 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. 1 square plus cot square is equal to cosec square. It can be transformed like this.
sec square minus tan square is 1. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta is also 1. Mind it, in each trigonometric identity, whatever square trigonometric identity you are writing, there are three things. One trigonometric ratio, second trigonometric ratio, and one second trigonometric ratio, and one. Simply, what is the lower minus the square of lower minus square of upper? Sec square minus tan square is 1. 1 plus tan square, इसमें ऐड करेंगे 1 plus tan square sec square minus 1 tan square, sec square minus tan square will give you 1, क्योंकि तीन चीजें, sec square में से tan square गया तो 1 आया, 1 में tan square जोड़ा आगे पहुंच गए sec square theta minus 1 tan square theta. This follows. I hope it is clear. Basic trigonometric identity, we will be using it whenever we see some question. See, for an instance, if you find tan inverse of cot theta is 1 upon tan theta, and tan theta can be written as sec square theta minus 1. Mind it. How this question is framed? We need tan inverse of tan theta. Actually, it is tan theta. How it is tan theta? It is reciprocal of tan, that is 1 upon cot. How it is cot? Cot is cosec square theta minus 1. Cosec square theta minus 1. So if you take x as cosec theta, what you get is cosec square theta minus 1. Cosec square theta minus 1 gives you cot square theta. So the square root of cot square theta is cot theta. 1 upon cot theta is tan theta. This is how the questions are framed. We'll make a lot of questions and we'll try to understand how the questions are framed, what substitution is to be made. These formulas, these patterns will help us definitely. Now we will go for multiple angle formulas, that is multiples and submultiple. Before that, we must discuss sin A plus B, cos A plus B, tan A plus B. Right. We know the formula sin A plus B. Sin of A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. The pattern of sin is very simple: sin, cos, sin. If there is plus, then in the answer you will get plus. Sin A cos B plus cos A sin B. If you talk about sin A minus B, that is nothing, simply sin A cos B minus cos A sin B. Now if I talk about cos of A plus B, cos का पैटर्न है, दोनों cos एक साथ आते हैं, दोनों sin एक साथ आते हैं, तो यहां क्या होगा? cos A cos B, cos A cos B माइनस sin A sin B. आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन लगातार इंक्रीज होता है, बढ़ते बढ़ते जीरो से बढ़ते 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 1, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी. लेकिन कॉस में क्या होगा? जब एंगल बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू कम होती जाती है. कॉस 0 इज 1, धीरे धीरे 1 से कम होते होते 90, कॉस 90 क्या हो जाता है? 0. यानी यहां पर क्या हो रहा है? एंगल बढ़ रहा है जब, तो वैल्यू फाइनली कम हो रही है. सो यहां पर प्लस में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है, क्योंकि इसका बिहेवियर उल्टा है. साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस कैसा फंक्शन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है. हम बात करेंगे इनके बारे में फिर से. चलिए, अब tan ऑफ A प्लस tan ऑफ A प्लस बी इज सिंपली tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B. अब आते हैं हम अपने बेसिक चीज पे. ये फॉर्मूले भी कई बार काम आते हैं और सबसे ज्यादा जो काम में आने वाला है, दैट इज 2 थीटा मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल्स. लेट्स टॉक अबाउट इट. इफ आई टेक बोथ A and B as theta, what it gives? Sin theta plus theta. If I take A is equal to B is equal to theta. So sin of theta plus theta, that is sin of 2 theta, is nothing but sin theta cos theta. Sin theta cos theta plus cos theta sin theta plus cos theta sin theta, that is nothing, sin theta cos theta, and it is also sin theta cos theta. So 2 times of sin theta cos theta. So we have a formula sin of 2 theta.
साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. लेट्स टॉक अबाउट कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा क्या है? देखो सीधा सीधा ए और बी दोनों की जगह थीटा रखते हैं. क्या होगा? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज वन फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अगर आप चाहें तो सारा आप किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में. तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. So this will give you 1 minus 1 time and 1 time, 1 minus 2 times of sin square theta. This is also a formula for cos 2 theta. Now if you want the answer in terms of only in terms of cos, so what you will do, you will reduce it to cos square theta by using the square identity, standard square identity. क्या लिख सकते हैं भाई? या माइनस का साइन है ब्रैकेट से पहले, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस गिव्स यू कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सी, अवर कॉस 2 थीटा हैज 3 patterns. Cos 2 theta, that is cos square theta minus sin square theta. Here simply you replace a and b by theta, cos square theta minus sin square theta. If you try to change all the terms in the terms of sine, then what you get is 1 minus 2 sin square theta. If you try to change all the terms in all the things in cos, then cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. These are the most important formulas which are frequently used. See how. It is very simple. When you talk about this formula, if I need the value of 1 minus cos 2 theta, see, I transpose 2 sin square theta this side and cos 2 theta this side. So this will give me 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. Mind it. 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. If I in this formula, if I transpose 1 to the left hand side, what I get is 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. This is the widely used formulas. It will be used in differentiation, integration, and simplification of trigonometric functions. Find it. What is the pattern? 1 minus cos 2 theta will lead you to 2 sin square theta. और 1 plus cos 2 theta करते क्या हो जाएगा? 2 cos square theta. देखो 1 है. अगर 1 पहले टेबल में पहले कौन आता है? साइन, बाद में कौन आता है? कॉस. फॉर अ रेफरेंस ये मान ले 1 में से cos 2 थीटा सब्ट्रैक्ट किया, तब तो क्या आया? 2 साइन स्क्वायर. टेबल जब हम लिखते हैं साइन कॉस टेन, तो 1 माइनस करते ही क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा करते ही क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा. ये बहुत ज्यादा यूज होता है. आपको यहां भी एग्जांपल देके मैं बहुत सारे समझा सकता हूं. ये रहा. व्हाट इट दिस क्वेश्चन सेज, tan इनवर्स क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा करते ही 1 माइनस कॉस 2x क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स. क्या होगा ये? 2 साइन स्क्वायर एक्स. ओके. 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2x सीधा दिमाग में आना चाहिए. क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स. सो दिस इज tan इनवर्स. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स. और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं, x इज लेस देन pi by 2, so this will give us tan of simply root of tan square x is tan x. Tan inverse of tan x will give me simply x. So this is how the questions are solved. This is how the questions are framed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस यानी 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस यानी 2 sin स्क्वायर, 1 माइनस cos 2 थीटा. 1 माइनस cos 2 थीटा इज
2 sin square theta. 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. This is how the things works. अब हम बात करते हैं tan of a plus b. tan of a plus b कैसे हेल्प करेगा? tan of a plus b. tan a plus b में if I take both a and b as theta, what will happen? Tan of theta plus theta, that is tan 2 theta, is equal to tan theta plus tan theta. Tan theta plus tan theta is nothing but 2 tan theta upon 1 minus tan theta into tan theta, that is tan square theta, right? So this is the formula for tan 2 theta, and that is nothing but 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. If someone asks you tan inverse of 2 tan theta, meaning 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, what you will do? You will simply substitute x as tan theta, so that you will get 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Now there are two formulas, sin 2 theta and cos 2 theta in terms of tan. देखो ध्यान रखो, बहुत आसान है. If you remember the formula for tan 2 theta, that is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. ये कहां से आया? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. साइन अपॉन कॉस में अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप किससे डिवाइड कर दें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से दोनों जगह, तो आपको क्या मिलता है? देखो, तो न्यूमरेटर बनेगा वो sin 2 थीटा बनेगा. तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कैसे? बहुत सिंपल है. अगर आपको tan 2 थीटा याद है, ये पैटर्न आपको पता है tan 2 थीटा का. tan 2 थीटा क्या है? tan ऑफ a प्लस b से जनरेट कर सकते हो. tan थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. दोनों को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो sin थीटा होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा. तो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? sin. ये बनेगा cos. अब इस पे क्वेश्चंस देखते ही बनते हैं. देखो, साइन इनवर्स ऑफ, अगर आपको कोई ये बोले तो कहने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे हम? We'll take x is equal to tan theta. This is simply sin 2 theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is simply sin 2 theta. 2 tan theta upon 1 plus आते ही क्या होगा? sin 2 theta. तो sin inverse of sin 2 theta is nothing but 2 theta. This is how it works. Here sin inverse of cos 2 theta actually it is 1 minus tan square upon 1 plus tan square. 1 minus tan square upon 1 plus tan square. This is formula for cos 2 theta. sin 2 थीटा हो चाहे cos 2 थीटा हो, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. जो tan के न्यूमरेटर में वो sin के न्यूमरेटर में आएगा, tan के डिनोमिनेटर में tan के cos के न्यूमरेटर में आएगा. sin अपॉन cos, ये sin में काम आएगा, ये cos में. दिस इज हाउ द पैटर्न्स वर्क्स. एक और पैटर्न बात करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे. विल टॉक अबाउट 3 थीटा. 3 थीटा की कैसे बात करें? sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा. सो सबसे पहले sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा. sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा. sin 3 थीटा कंप्लीटली sin की फॉर्म में और cos 3 थीटा कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ cos. कैसे होगा? देखो, ये है टेबल में पहले, ये है 34 एंड दिस इज 43. अगर नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाए तो 34 पहले आएगा, साइन पहले और बाद में cos. कैसे होता है? 3 4 3 4 4 3 43, बीच में माइनस आता है. 3 के साथ सिंगल पावर आएगी तो आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. 4 के साथ क्यूब आता है, 3 के साथ सिंगल पावर. सेम अब ये सारा cos में चलेगा. 4 के साथ सिंगल, 4 के साथ क्यूब, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ट्राई टू राइट इट. क्या होगा? 34 43. अगर मुझे कोई पूछे cos 3x, तो cos में क्या आएगा? 43. तो पहले 4 के साथ cos का क्यूब, 4 cos क्यूब x माइनस 3 के साथ क्या आएगा? 3 के साथ सिंगल पावर, 3 cos x 43. और यही मुझे sin 3x लिखना होता तो क्या लिखता? 34. अब अगर इसकी जगह x
थीटा लिख के देखो या y लिख के देखो तो ये ऐसा नजर आएगा 4y माइनस 3y, 4y क्यूब माइनस 3y। या आप थीटा में लिखें, यहां अगर मैं साइन थीटा की जगह लिखूं x तो 3x माइनस 4x क्यूब। और यही हमारी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, नथिंग 34। ये फॉर्मूला किसका है? साइन 3 थीटा का। कब? जब x की जगह क्या पुट कर देंगे? साइन थीटा। x की जगह साइन थीटा लिखते ही क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 3 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज सिंपली 3 थीटा यानी 3 साइन इनवर्स x। सेकेंड क्वेश्चन वही है, cos इनवर्स ऑफ 43 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x क्या होगा? We'll take x is equal to cos theta. Why? Because 4 cos cube theta minus 3 cos theta is nothing but cos 3 theta. 43. This is cos 3 theta. So this is how we apply the formula. This is how these patterns helps us. Last but not the least, let us talk about tan of x plus y plus a plus b plus c. That is tan of a plus b plus c. You need not to learn this formula, but this can help you to derive, to get the idea about this formula tan 3 theta. Well, how? tan a plus b plus c तीनों का अलग अलग सम, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस तीनों का प्रोडक्ट एक साथ, tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस दो का प्रोडक्ट, 1 माइनस tan a tan b माइनस b के साथ c tan b tan c माइनस c के साथ a tan c tan a, राइट। अब क्या हुआ? अगर मैं a b c तीनों की जगह थीटा ले लूं, इफ आई टेक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा प्लस थीटा इज tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। देखते हैं ये क्या बनेगा, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा, माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज क्यूब ऑफ tan थीटा tan क्यूब थीटा, upon 1 minus tan theta into tan theta, this is minus tan square theta, again minus tan square theta, again minus tan square theta, 3 times of minus 3 times of tan square theta. Now how it works? Simply if I write a question, tan inverse of C 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Obviously, in the very first side, you will say, okay, take x is equal to tan theta. What it becomes? 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. That is tan inverse of tan 3 theta. This is given in our textbook in exercise 5.3. Differentiation की जो exercise है 5.3, वहाँ trigonometric function को simplify करने के बाद differentiate करना, तो वहां भी simplification काम में आता है। यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, देखो इसको देखते ही पता लगना चाहिए, tan इनवर्स के अंदर we need tan, so that inverse function tan inverse of tan will simply give you the input itself. So this is actually 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta is the formula for tan 3 theta. So this is tan inverse of tan 3 theta means 3 theta means tan 3 tan inverse x. अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। फिर से एक बार ये पैटर्न जरूर देखें। 1 माइनस cos 2 थीटा करने पे 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर। इस पर ध्यान दें, tan 2 थीटा की फॉर्मूले tan की फॉर्म में, तो sin 2 थीटा इज नथिंग, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही आएगा, cos 2 थीटा में भी डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा में ऊपर आता है 2 tan थीटा, इसमें आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan का फॉर्मूला था 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे पहले एक बार इस हेक्सागन पे फिर से नजर डाल लेते हैं। वेल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर माइनस 1 इज tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1।
1 plus cot square is equal to cosec square. Cosec square theta minus cot square theta is 1. Cosec square theta minus 1 is the second trigonometric ratio, that is cot square theta. और देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज होगा वो ये है sin 90 minus theta is no doubt cos theta, and the reverse. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. In the same way tan 90 minus theta क्या हो जाएगा cot theta. Cot 90 minus theta क्या है tan theta. Sec 90 minus theta cosec theta. Cosec 90 minus theta sec theta. तो अगर कहीं cos inverse of sin theta दिखाई दे तो हमें क्या करना है, cos inverse of sin theta को लिख देंगे cos pi by 2 minus theta, and cos inverse of cos is simply pi by 2 minus theta. Inverse of inverse is the input itself. तो इस तरह से हमें ये करना है, राइट। और दूसरी बात करें, सीधा है कि अगर आप चाहते हैं tan थीटा तो इससे पिछले sin अपॉन cos क्या आ जाएगा tan. cot चाहते हैं cosec अपॉन sec क्या आ जाएगा cot. दूसरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाला आ जाएगा, बीच में खड़े हो दोनों को लड़ा दो, tan इंटू कॉस, देखो tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट sin थीटा। देख लो आप किसी भी तरह से, cosec, sec इंटू cot इज cosec, sec, tan इंटू cosec इज sec, tan, sin इंटू sec मतलब sin अपॉन cos मीन्स tan। तो इस तरह से ये हेक्सागन, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, sin इज रेसिप्रोकल टू दिस, tan इज रेसिप्रोकल टू cot। तो इस हेक्सागन से आपको बहुत सारे फॉर्मूलों के पैटर्न्स अगर आप फॉलो करना चाहें और एक बार नजर डालना चाहें तो इस हेक्सागन का थोड़ा सा ध्यान रखें और आपसे सारे हो जाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस की। हमने बात की sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 3 थीटा वगैरह, tan a प्लस b। अब देखते हैं कैसे यूज होते हैं। चलिए जल्दी से किसी भी क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। ये है cos, cos के अंदर हमें तो चाहिए था cos 2 थीटा। तो कई लोग क्या सोचते हैं बाहर cos है तो अंदर cos मानना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिकली आप चाहते हैं कि cos इनवर्स का इनवर्स फंक्शन दैट इज cos बन जाए। अगर cos ना बने तो कोशिश करें sin हो जाए, ताकि अगर cos के अंदर sin, cos इनवर्स ऑफ यू गेट sin थीटा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको cos 90 माइनस कर सकते हो, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो दैट cos इनवर्स cos एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है तो आपको इनपुट यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा मिल जाए। तो cos के अंदर या तो sin बनाने की कोशिश करते हैं या cos, tan के अंदर या तो tan या cot। इसी तरह से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये सब क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज 5.3 पेज 169 डिफरेंशिएशन है। हमें अभी डिफरेंशिएशन नहीं करना, हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9 to 15। अब देखिए ये क्वेश्चन है cos इनवर्स, इसको देखते ही कुछ याद आ रहा है क्या, ये तो फॉर्मूला है किसका, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा सो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दोनों तरफ का tan इनवर्स लिया तो tan इनवर्स tan थीटा बन जाएगा थीटा और b हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए तो यहां ये बना cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा। किसका, तो cos के अंदर sin आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और फाइनली हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह क्या लिख दिया, tan इनवर्स x। हमें आंसर थीटा में नहीं देना है, x में देना है, तो इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स है। इसी तरह से ये अगर बाहर cos इनवर्स होता तो cos 2 थीटा है, लेकिन बाहर क्या है, sin इनवर्स। तो यहां भी वही 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। देखो फिर से याद रखने के लिए, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें हम किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। डिवाइड करें किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला और ये sin 2 थीटा का। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये सीधा सीधा हमारे पास sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। sin के अंदर cos आया तो क्या होगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो फाइनली हमारे पास आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और हमने x को tan थीटा माना था, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x।
तो इसमें भी x की जगह tan थीटा, इसमें भी x की जगह tan थीटा, ये सीधा सीधा x की जगह tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन cos के अंदर साइन आया उसको पाई बाय 2 माइनस कर दिया, ठीक है। और ये सीधा सीधा cos इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, कैसे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज cos 2 थीटा। सिंपली ये देखते ही सीधा सा कहने की जरूरत नहीं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका tan 3 थीटा। तो ये बन गया tan इनवर्स, इस हर एक में हम x की जगह ये सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं इन सब में, तो ये क्या बन रहा है tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वो हो गया tan 3 थीटा, यानी बचा 3 थीटा, थीटा की जगह लिख दिया tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x, तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके 3 tan इनवर्स x। इन द सेम वे यहां भी x की जगह tan थीटा लिया ही। अब मान लिया क्वेश्चन ऐसा हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ये होता तो आप x की जगह क्या रखते साइन थीटा, क्यों रखते, ये रहा हमारा क्वेश्चन। जैसे ही लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या फायदा हुआ, यहां से थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स x, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू रूट वाला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लिया तो कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, बचा 2 थीटा, लेकिन इस बार हमने थीटा किसको माना था साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x। तो इस तरह से यहां से क्यों x की जगह थीटा माना, x की जगह साइन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा दैट इज 2 थीटा यानी 2 साइन इनवर्स x। इसी तरह से हमने 34 43 वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। अब ये देखो सेक इनवर्स ऑफ ये कैसे होगा, हम चाहते हैं सेक के अंदर सेक आ जाए, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस 2 थीटा। तो अगर x की जगह सिंपली cos थीटा पुट करता तो ये बन जाता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है sec 2 थीटा, sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा मतलब 2 थीटा। तो यहां x की जगह हमने क्या लिया cos थीटा, तो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा व्हिच गिव्स अस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। यहां से क्या कहानी हुई, ये हमारा क्वेश्चन बन गया द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos square theta minus 1 that gives you sec inverse of 1 upon cos 2 theta, so that sec inverse of sec 2 theta, cos 2 theta का reciprocal sec 2 theta, sec inverse of sec means simply 2 theta, theta क्या इस बार cos inverse x, तो 2 cos inverse x is our answer। तो इस तरह से क्वेश्चन सारे बने हैं, ये देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा मींस 3 थीटा मतलब 3 tan इनवर्स x। ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा मींस 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x। ये बना sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को लिखा sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो ये बनेगा फाइनली पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इसकी बात करें cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा यानी फाइनली पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इसी तरह से ये sin 2 थीटा है, कैसे 2 sin थीटा और ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट लेने पे cos थीटा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा यानी sin 2 थीटा, तो x की जगह हमने क्या माना sin थीटा। यहाँ पे sec इनवर्स ऑफ sec चाहिए, sec मतलब 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो x की जगह cos थीटा ले लिया, तो अपने आप ये sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा यानी 2 थीटा यानी 2 cos इनवर्स x हो गया। अब इन पे ध्यान दें, हमने डिस्कस किया कि 1 माइनस कॉस 2x होने पे हाफ एंगल में कन्वर्ट होगी, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2x यानी 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x यानी 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर का रूट आ गया tan इनवर्स के अंदर tan थीटा यानी थीटा, थीटा किसको माना था हमने
यहाँ हमने tan इनवर्स x में आंसर, सॉरी हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया था, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x विल गिव यू सिंपली x। यहाँ हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब इस क्वेश्चन इसकी बात करें, साइन इनवर्स 34 हम डिस्कस कर चुके हैं, x की जगह क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा। कहां से आई ये इंट्यूशन, सीधा दिख रहा है 34, 3 sin x minus 4 sin cube x, दैट इज sin 3 थीटा। साइन इनवर्स के अंदर sin 3 थीटा मतलब 3 sin इनवर्स x। इसी तरह से यहाँ tan के अंदर tan चाहिए, तो यहाँ ऐसा नहीं कि बाहर tan है इसलिए tan ले रहे हैं या बाहर sin है इसलिए sin ले रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। हम चाहते हैं इसका इनवर्स फंक्शन आ जाए। अगर इनवर्स ना आए तो tan किसके साथ चल सकता है, cot के साथ, तो cot आ जाए, cot को बाद में tan पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख देंगे। अब हुआ क्या, हमें चाहिए tan के अंदर tan मतलब cot बन जाए। cot कैसे बनेगा, tan मतलब 1 अपॉन cot बन जाए, ये cot है, cot कैसे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x की जगह क्या लिया, cosec थीटा, यानी थीटा क्या हो गया, cosec इनवर्स x। इससे क्या फायदा हुआ, जैसे ही x की जगह cosec थीटा लिया, आवर एक्सप्रेशन बिकम tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan इनवर्स, सॉरी अंडर रूट लगाना भूल गया, अंडर रूट, तो 1 अपॉन ये बन जाएगा cot थीटा, cot थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा tan थीटा, फाइनली tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मींस थीटा, थीटा की जगह इस बार क्या लिखेंगे, cosec इनवर्स x। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें इनको देखते हैं। सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला मैं आपको फिर बता दूं, सबसे ज्यादा काम आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा आते क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और tan ऑफ a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब एक इंपॉर्टेंट बात से शुरू करते हैं, ये दो क्वेश्चंस, सो दैट हमारा बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद हम किसी भी तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कर पाएंगे। वेल, यहां अब बात करते हैं इसकी, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा cos x माइनस sin x अपॉन cos x, इसका अपोजिट प्लस sin x। ये कैसे होता है, हम चाहते हैं कि tan इनवर्स के अंदर वापस tan आ जाए, tan ऑफ समथिंग। इसके लिए क्या करेंगे, इसको tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बनाएंगे। वो कैसे होगा, हम tan बनाने के लिए क्या करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो cos x अपॉन cos x 1 माइनस sin अपॉन cos x इज tan x अपॉन cos x अपॉन cos x इज 1 प्लस sin x अपॉन cos x इज tan x। अब हम जानते हैं tan ऑफ a माइनस b प्लस माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a, अगर प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस tan b अपॉन 1 माइनस, यहां दोनों का प्रोडक्ट आता है tan a इंटू tan b, तो 1 की जगह हम tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे, tan ऑफ समथिंग प्लस tan ऑफ अदर अपॉन 1 माइनस उन दोनों का प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 की जगह लिख दिया tan पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस, यहां दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इंटू में 1 अपनी तरफ से लिखेंगे, ये इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो ये फॉर्मेट बनाना, ये बहुत आसान, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे स्टेप में आता है, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। क्या हुआ, tan के अंदर अगर cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन है, cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन है, तो सबसे पहले इसको tan में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, cos से डिवाइड। जैसे ही आपने cos से डिवाइड किया, ये बता 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब इस 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख दिया, यहां आपको tan a इंटू tan b चाहिए, तो इंटू tan a यानी tan पाई बाय 4 चाहिए, tan पाई बाय 4 1 होता है, इस 1 की जगह हमने tan पाई बाय, तो यहां देखते ही tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b, a की जगह पाई बाय 4 माइनस x, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मेट बना, tan इनवर्स के अंदर tan आते ही हमारा आंसर आ गया।
द आंसर इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। फिर से देखें, बहुत सिंपल स्टेप है और सबसे ज्यादा यूज्ड है। क्या होगा, टेन इनवर्स के अंदर कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन है, तो करना क्या है, टेन में चेंज। टेन में चेंज कैसे होगा, साइन अपॉन कॉस, यानी हमें डिवाइड किससे करना है, कॉस से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड किया, ये बना 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब हमें बनाना टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए। टेन ए इसकी जगह लिखा टेन पाई बाय 4 अपॉन 1 को ऐसे ही रहने दिया, प्लस टेन ए इंटू टेन बी चाहिए। तो टेन ए यहां लिख दिया इंटू में 1, दैट इज 10 पाई बाय 4 1। 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर एक क्वेश्चन में बनता है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, यहां भी यही होगा। x की जगह हम लेंगे cos 2 थीटा। ये एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, तो उससे ऑलमोस्ट हमारा सारा टॉपिक हो जाएगा। देखो कैसे, ये है 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स अंडर रूट में। हम जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ 1 प्लस भी और 1 माइनस भी और उसका रूट भी लेना है। तो यहाँ देखते हैं आराम से, यहां हम मानेंगे ये लेट x इज इक्वल टू कॉस और 2 थीटा। दोनों तरफ का कॉस इनवर्स लिया तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा यानी 2 थीटा। तो यहां से आएगा थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करना, तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 2 नहीं, कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x। अब आते हैं क्वेश्चन को, द गिवन एक्सप्रेशन। अपना गिवन एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, सो ये मान लिया ये y है, तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या बनता है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, सेम है ये बीच में प्लस है, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स। ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर। तो ये आ गया प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये सेम है बस प्लस है बीच में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लेते हैं, tan इनवर्स क्या बना ये, रूट 2 कॉस थीटा, रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, कॉमन लेके ऐसे मत कर देना। तो रूट 2 हमने कॉमन लेने के बाद क्या कर दिया, कैंसिल। तो सीन कुछ ऐसा नजर आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वहीं पहुंच गए हम फिर से। tan के अंदर tan लाना है, सीधी सी बात है, cos से डिवाइड करेंगे। cos से डिवाइड करते क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन। 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा, यानी tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले यहां से देखें, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। जब भी ऐसा होगा, इतिहास गवाह, हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, tan में चेंज करना है, tan में चेंज करना है साइन कॉस, तो क्या होगा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस यानी न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड। अगला स्टेप क्या लिया, 1 की जगह यहां क्या लिखा, tan पाई बाई 4, तो ये लिख दिया tan पाई बाई 4 माइनस ये हो गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां इंटू में 1 अपनी तरफ से किया इंटू 1, उस 1 की जगह लिखा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो ये बन गया tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। जब ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस आता है, माइनस होने पे प्लस आता है। तो tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी इज सिंपली फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a माइनस b। a की जगह है पाई बाई 4 माइनस b की जगह है थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan एक दूसरे का इनवर्स ऑपरेशन है, तो बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा, और इस बार थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या है, हाफ कॉस इनवर्स एक्स।
थीटा कितना है, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन फिर से डिफरेंशिएशन में आता है, डिफरेंशिएट इट, तो इसको हम अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, यहाँ देखें एक्स की जगह माना cos 2 थीटा, जैसे cos 2 थीटा मानेंगे ये बना 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बना 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लिया तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। जैसे ये आया cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin, हम जानते हैं क्या करना है, cos से डिवाइड। बस ये एक नई चीज सीखनी है, tan इनवर्स। इस तरह के क्वेश्चन में cos प्लस sin, cos माइनस sin होने पे या cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin होने पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करेंगे। cos से डिवाइड क्यों करेंगे, tan में चेंज करने के लिए करेंगे। tan में चेंज करते वक्त क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसीलिए इनटू में यहाँ 1 कर देंगे, उससे क्या होगा 1 की जगह लिख सकेंगे tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 होता है 1, tan 45 होता है 1। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो कि फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस b, a की जगह पाई बाय 4, b की जगह थीटा। ये क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर दें तो फर्क सिर्फ इतना बनेगा, tan a प्लस b बन जाएगा, फाइनल आंसर प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद हम और क्वेश्चंस लेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आने लगे होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते ही आप बहुत अच्छे से इस पे कमांड कर सकते हैं और बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।